Hello everyone. Now I am going to talk about the topic that is educational implication of multiple intelligence. The specified topic related to AMED semester 3 and the paper specialization paper secondary and senior secondary education and the specified or the related unit is 1. आज मैं जो बात टॉपिक की बात कर रहा हूँ बहुबुद्धि में बहुबुद्धि की शैक्षणिक उपयोगिता यानी बहुबुद्धि में शैक्षणिक उपयोगिता शैक्षणिक उपयोग कैसे शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे किया जाए उसके बारे में बात कर रहा हूँ और यह एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत जो स्पेशलाइजेशन पेपर है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसके पूर्व के वीडियो में मैं गार्डनर साहब की थ्योरी के बारे में विस्तार से बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में विस्तार से बात कर चुका हूँ। जब कहीं भी बहुबुद्धि की उपयोगिता यानी शिक्षा के क्षेत्र में की जाती है तो गार्डनर साहब ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र वाले लोग कैसे किस क्षेत्र में वो जा सकते हैं। लेकिन जब शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक शिक्षक के लिए उसके क्लासरूम की स्थिति के अनुसार बात करते हैं तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है कि कैसे एक शिक्षक छात्रों की बुद्धि के अनुरूप अपना लेक्चर तैयार करे, अपना लेसन प्लान तैयार करे और उस अनुसार क्लासरूम में पढ़ाए, प्लस क्लास को कैसे इंगेज करे, इससे भी चीज़ें स्पष्ट होती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि के अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इस विभिन्नताओं के अनुसार कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्या उसका आधार हो, या लॉजिकल दृष्टिकोण क्या हो, मैथमेटिकल दृष्टिकोण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो ये सभी चीज़ें उपयोगी हैं क्लासरूम के लिए और एक शिक्षक के लिए भी। अब मैं इसकी उपयोगिता को और विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class. Education based I am going to talk about today's topic education based on multiple intelligences. The groundbreaking theory postulates that intelligence is not a monolithic ability but covers an entire spectrum of cognitive capacities termed intelligences. There are at least 7 identified intelligences which include logical, mathematical and linguistic intelligences, visual spatial intelligences, bodily kinesthetic intelligences, musical intelligences and interpersonal and intrapersonal intelligences. There are other candidate intelligences including naturalistic and existential intelligences. Abilities qualifies as a specific intelligence only if it is located in a specific anatomical region of the brain and individual differences in its manifestation can be quantified. The point of diversion of the theory of multiple intelligences from the concept of singular intelligence or IQ is its inclusiveness. The IQ test which quantify intelligence emphasize exclusively logical, mathematical and linguistic ability. It, due to this exclusive character, tends to discount the other significant cerebral competencies. Now, next, due to this bias, the education and pedagogy shifted in the course of centuries to aid the development of mathematical, logical and linguistic capacities become a synonymous with education. The multiple intelligence theory can draw students back into learning, using the different intelligences to teach a concept allowed to each of your diverse learners a chance to succeed at learning. Teaching to a student's strength help increase learning success. Now, educational importance of multiple intelligence. Number 1, to plan engaging and effective lessons. Second, learning styles of student. Third, to target the various interests. Fourth, linguistic intelligences help in using words and languages.
Logical mathematical intelligence helps in using numbers and reasoning skills. Spatial intelligence helps in the thinking in three dimensions. Body kinesthetic intelligence helps in manipulating objects and being physically adapted. Multiple intelligences help in the student, such as Gardner introduced 8 different types of intelligences consisting of logical, mathematical, linguistic, musical, spatial, bodily, kinesthetic, naturalist, interpersonal, and intrapersonal. Verbal linguistic, word smart. Logical, mathematical, math smart. Musical, rhythmic, music smart. Body kinesthetic, body smart. Visual, spatial, art smart. Now next, naturalist, nature smart. Intrapersonal, self smart. Interpersonal, people smart. Existential, wandering smart. The theory of multiple, lastly, the theory of multiple intelligences has encouraged the idea that a person is not born with all the intelligence they will ever possess. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। एकाधिक बुद्धिमत्ता पर आधारित शिक्षा, ग्राउंड ब्रेकिंग यानी जो जमीनी स्तर पर सिद्धांत बताता है कि बुद्धिमत्ता एक अखंड क्षमता नहीं बल्कि बुद्धिमानी कहे जाने वाले संज्ञानात्मक क्षमताओं के एक पूरे क्षेत्र को कवर करती है। कम से कम 7 पहचाने गए बुद्धिजीवी हैं जिनमें तार्किक, गणितीय और भाषाई बुद्धि शामिल है। दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति परक बुद्धिमत्ता, सांगीतिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक और पारस्परिक बुद्धिमत्ता है। अन्य उम्मीदवार जिनमें प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता शामिल हैं। एक क्षमता केवल एक विशिष्ट बुद्धिमत्ता के रूप में योग्य होती है जब यह मस्तिष्क के विशिष्ट शारीरिक क्षेत्र में स्थित हो और इसकी अभिव्यक्ति में अलग अलग अंतर निर्धारित किया जा सके। एक वचन बुद्धि या IQ दैट इज इंटेलिजेंस कोशेंट की अवधारणा से एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के मोड की विशिष्टता है। बुद्धि का परीक्षण करने वाले IQ परीक्षण विशेष रूप से तार्किक, गणितीय और भाषाई क्षमता पर जोर देते हैं। यह इस विशिष्ट चरित्र के कारण अन्य महत्वपूर्ण सेरेब्रल यानी जो दिमागी तौर पर है दक्षताओं को छूट देता है। इस पूर्वाग्रह के कारण शिक्षा और शिक्षा शास्त्र सदियों के दौरान गणितीय, तार्किक और भाषाई क्षमताओं के विकास में सहायता करने के रूप में शिक्षा का पर्याय बन गया। कई सिद्धांत छात्रों को सीखने में वापस ला सकते हैं। अवधारणा को पढ़ाने के लिए विभिन्न बुद्धिमत्ता का उपयोग करने से आपके प्रत्येक विविध शिक्षार्थियों को सीखने में सफल होने का मौका मिलता है। एक छात्र की ताकत को सिखाने से सीखने की सफलता में वृद्धि होती है। शिक्षा में एकाधिक बुद्धिमत्ता का महत्व। नंबर 1, प्रभावी पाठों की योजना बनाने में, छात्रों की सीखने की शैलियों में, छात्रों की विभिन्न रुचियों को लक्षित करने में। छात्रों की विभिन्न रुचियों को लक्षित करने में। नेक्स्ट, भाषाई बुद्धि, शब्दों और भाषा का उपयोग करना। तार्किक, गणितीय बुद्धि, संख्या और तर्क कौशल का उपयोग करना। स्थानिक बुद्धिमत्ता, तीन प्रकार से सोचना। शारीरिक गतिपरक बुद्धिमत्ता, वस्तुओं का कौशल उपयोग करना और शारीरिक रूप से निपुण होना। शिक्षा में एकाधिक बुद्धिमत्ता छात्रों को कई प्रकार से या छात्र में उसकी कौशल के अनुसार कई प्रकार से मदद करती है। जैसे कि बुद्धि की इस धारणा को व्यापक बनाने के लिए गार्डनर ने 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं तार्किक, गणितीय, भाषाई, संगीतमय, स्थानिक, शारीरिक, गतिपरक, प्रकृतिवादी और पारस्परिक और गहन आधार पर बताया, जिसमें कि मौखिक और भाषाई शब्द स्मार्ट, तार्किक, गणित स्मार्ट, संगीत लयबद्ध, संगीत स्मार्ट, शारीरिक गतिपरक, शारीरिक रूप से स्मार्ट, दृश्य स्थानिक, कला स्मार्ट, प्रकृतिवादी, प्रकृति स्मार्ट, अंतरावैयक्तिक, स्वयं का स्मार्ट और पारस्परिक, लोग स्मार्ट यानी जो पीपुल हैं वो लोग, अस्तित्ववादी, भटकने वाले स्मार्ट यानी इधर उधर जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए हैं वो भी स्मार्ट है। एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत ने इस विचार को प्रोत्साहित किया
है और एक व्यक्ति उन सभी बुद्धिमत्ताओं के साथ पैदा नहीं होता है जिनके पास वह कभी भी होगा। तो इस प्रकार से मैंने इन सभी चीज़ों की इसकी शैक्षणिक उपयोगिता के बारे में सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट किया। अभी जो मैंने चर्चा किया और उस पर जो शैक्षणिक उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया, ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि गार्डनर साहब के जो सिद्धांत हैं एक क्लासरूम के आधार पर और शिक्षक के लिए अति उपयोगी हो सकता है अगर इसका सही तरीके से क्लासरूम में उपयोग किया जाता हो। साथ ही साथ उनके जो 8 सिद्धांत बताए गए वो कैसे उपयोगी हैं इसके बारे में भी मैंने स्पष्ट तौर पर बताया। तो आप अब इस वीडियो को देखें, पसंद करें और इसका सही तरीके से नोट तैयार करें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको समय पर तुरंत उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।